In wake of the UGC's newest guidelines, protests have been taking part in several parts of Delhi. One such area is the Delhi University area, where we are here. We are joined by a group of students from various colleges under the Delhi University. We try to understand from them as to why the new UGC guidelines is something they're opposed to. Firstly, we want to try and understand from you what is the exact matter and why are protests being organized by students? So, as you must be knowing, and as it is nationwide known now, after all this is happening, that the bill, which is the regulation now, which is called the promotion of equity in itself, if you go by the name of it, nomenclature of the enactment itself, which is called promotion of equity. But I don't know where does this equity is coming from. You see, people are being categorized into groups like this. There is protests across the nation, political protests, student protests, all kind of protests. So basically what we are doing is we are just making the public, the society more caste conscious. And this happens only when election is nearby. So you know where it is coming from. And people are being divided into different castes. And the protest that you see right here from now is not from any caste. There you will not see people carrying their caste ka jhanda here. People are here from general category who have been defined into that category through for the administrative efficiency purpose, but the rule which is here is entirely in itself vague and up to a matter biased also. The EOC, Equal Opportunity Cell provision that has been set up by the UGC, it says will also allow advantage somewhere to the general or open category or caste students as well. So is that not a good thing where they are saying that no discrimination will take place? First of all, I want to say one thing. In 1912 or 1919, if I am not wrong, there was a English government come up with the Rowlatt Act. And this is today's Rowlatt Act. It's not an hyperbole. The condition is now, you are at the front of the gate number 4 of the arts faculty. आप इसमें last में जाएंगे, there is a equal opportunity cell already situated in this university. Then what is the needed of it? You are saying that it is a equally, there is a no penal. First of all, we have mainly 4 facts which are creating problem here. There is a no penal provision for the false complaints. Secondary thing, there is a no procedure on which how they doing the investigation, how they create the things कि आखिर कौन गलत है, कौन सही है, किसके आधार पे ये कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, इसका कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं है यहाँ पे. The main problem is if there is a, यहाँ पे आपने साफ लिखा हुआ है, there is a clear cut provision, that's what is the caste based discrimination. If there is a student which is so called सामान्य वर्ग, general caste, as per the government, अगर if he is failing, he is getting any kind of discrimination, caste based discrimination, what is the provision for that? But they have also said that the general category or open merit students or from a higher or upper caste, if they have a problem, then they can also approach the administration to voice their concerns. There is a no that's the provision. Let me show you one thing. There is a Gazette of India in my hand, and we are the law students. That is what I wanted also to say. Let me say you one thing. This is जाति आधारित भेदभाव साफ साफ लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है. यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि कोई सामान्य वर्ग का बच्चा अगर भेदभाव का शिकार होता है तो उसको ये जाति आधारित भेदभाव मानेंगे. और ये मैं कोई कहीं सुनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको ऑन पेपर बोल रहा हूँ यहाँ पे और ऑफिशियल गजट में. अब मैं आपको अपने LC2 की कमिटीज दिखाता हूँ. मैं लॉ सेंटर 2 का स्टूडेंट हूँ. मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन क्या ये जो नए प्रोविजंस है उसके तहत आपको लगता है कि जो जनरल वर्ग या सामान्य वर्ग के लोगों हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल पाएगा गवर्नमेंट के आश्वासन देने के बाद भी? बिल्कुल एडवांटेज नहीं मिलेगा. रीज़न ये है कि इतना ड्रैकोनियन लॉ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जिसमें आप ही जज हों, आप ही ये फैसला करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है. उस कमेटी जो बनेगी उस कमेटी में कोई जनरल कैंडिडेट नहीं रहेगा. सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 कहाँ गया. जब आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो आप ऐसे ड्रैकोनियन लॉ ला करके एक समाज को बांटने का वो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप समझ लीजिए मैं बड़ा फॉलोअर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार का आता हूँ मैं खुद इवन, लेकिन फिर भी मैं इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आप समाज में एक डिवीज़न क्रिएट कर देंगे. आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ हम आपस में ब्रदरहुड के नाते, भाईचारा के नाते कभी किसी से कोई कास्ट नहीं पूछता कुछ भी करने से पहले, लेकिन इस कानून के आने के बाद आप समाज में वैमनस्य पैदा कर दे रहे हैं. आप समाज को तोड़ दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिटर्मिनेशन.
So do you think that while you mentioned BJP very rightly, I want to understand from you, do you think this issue and this entire subject has been made political by a few politicians only to favor a certain part and certain strata of the society? No, no, it is the clear matter of fundamental right. I want to tell you because why I am saying this type of comment कि अगर जब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें रीजनेबलनेस कहां है, आप जनरल कैंडिडेट को आप पहले ही बाहर कर दे रहे हो रेस से। आप कोई तथाकथित आकर के आपके ऊपर आरोप लगा करके चला जाए कि आपने मुझे गाली दिया, हम प्रूव कैसे करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है। कोई कह दिया कि घड़ी चोरी कर लिया, अब मैं प्रूव करूं कि मैंने घड़ी चोरी नहीं की है, वो केवल आरोप लगाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। आप जनरल को मौत के घाट में, मौत के मुहाने पर छोड़ के चले जा रहे हैं और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम खामोश रहें, हम कुछ ना बोलें, दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ ना बोले, जनरल कैंडिडेट्स कुछ ना बोले। बात इसमें जातिवाद की भी है क्योंकि आप जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं। क्या 2047 में ऐसे ही विकसित राष्ट्र बनेगा? डेवलप्ड कंट्री के नेशन की जो डेवलप्ड नेशन की हम परिकल्पना कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है, इसी जातिवाद के रूप में करेंगे आप? जातियों के नाम पर तोड़ रहे हो भारत को। आपको शर्म नहीं आती है? यूजीसी को ऐसे कानून लाने से पहले उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे। जो 2027 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की कल्पना कर रहे हैं, हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है। मेरे विचार परिवार की सरकार है, फिर भी मैं उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये मेरा नैतिक और मौलिक अधिकार है। आज अगर मैं खामोश रहूंगा, आज अगर मैं खामोश हो जाऊंगा तो आने वाले समय में मेरे समाज के लिए बोलेगा कौन? Also you see out here it's written विरोधी नियम वापस लाओ. So do you think that this law, the new provision that is being introduced, is somewhere anti-students and challenges their whole identity as a whole? Right. Why do I say so? That this niyam and this code is against student or anti-student. There's a simple reason. You see, student community here, they study, they come here from so many places of the country. Assam, South, North, Kashmir, हर जगह से लोग आते हैं. But the code like this, the rule like this, the law like this, which emancipates, which aggravates the caste consciousness among students, that oh, I am a general category, oh, I am a OBC, I have a certain law for me that gives them an identity that tries to compartmentalize them into certain categories. So are you also somewhere trying to indicate and say that the new law and the new provision, rather than it uniting, it's going to be more divisive? 100% sir, and that is what I said. This is what we are protesting for. We are not carrying here किसी भी कास्ट का झंडा, हम किसी भी जाति का झंडा लेकर यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। ये कोई प्रो ब्राह्मण, प्रो जनरल कैटेगरी मूवमेंट नहीं है या प्रो जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट पे है, छात्र हित पर है। मैं मानता हूँ, चलिए डिस्क्रिमिनेशन को, वी आर नॉट डिक्लाइनिंग डिस्क्रिमिनेशन. We have studied history, we all are knowledgeable part of the country, and we know that there has been discrimination. But tackling discrimination like this, especially when you have elections upcoming in states like Kerala, Tamil Nadu, next year or next to next year we have Madhya Pradesh and Uttar Pradesh assembly elections also. This becomes more important when you see who was the chairman of this drafting committee. Digvijay Singh, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. क्यों कर रहे हैं आप? अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. आप चाहते हैं कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं आप उनको तुष्टि दे पाएं, आप उनको अपीस कर पाएं, जिनसे आपकी सत्ता बची रहे. तो अगर सत्ता के जमींदारों को ये लगता है कि वो इससे अपनी सत्ता बचा लेंगे, तो आपको ये प्रोटेस्ट और ये नज़ारा जो मेरे साथी खड़े हुए हैं, इस बात को नागवार करते हुए, इस बात का विरोध करते हुए बहुत बुलंदगी के साथ दिखेंगे और हम खड़े रहेंगे. Thank you very much all you students. As you can see, once again it out says a cross against University Grants Commission, the UGC, when will you wake up? This is an attempt to make student politics, you know, Virodhi Niyam. So basically it somewhere challenges the identity of students, and where people were not trying to take into consideration or factor in the caste part of this problem. Now it will make it even more prominent, and you can see these students out here who are protesting right outside the Faculty of Arts, Delhi University campus here, and they are also going to be protesting against the UGC outside their headquarters. However, the Union Education Minister has also assured them that there will be no bias, where the general or open category students will also be allowed to voice their concerns and their complaints. However, the EOC, the Equal Opportunity Cell, which has also been set up inside this very campus, the students question the need to set it up again, where it was always there. What is the need for it to be brought up again? However, this will only allow unfair advantage to those from SC, ST or OBC communities. These students, once again you can see,
Kala Kanun वापस लाओ. They're calling it the darkest day in history of Indian education, calling the act draconian and something that is more intense than the Rowlatt Act that was introduced during the time of British rule in India. With cameraman Dalip, Dev Kotak, Times Now, New Delhi. So the new provision that has been introduced by the UGC, why do you say that it does not favor the general category students? So first of all, the people who have framed UGC know very well that what is the purpose of a college, a purpose of a university. We come here, we learn together, we live together even in the flats. We talk about things, we debate things. There can be disagreements, but at the end of the day, we're all together, we are part of one fraternity. But when the UGC regulations have come up, I can say with all honesty that they have put a cross on our backs. We are from the general category, we are males, and they have automatically assumed that we are the oppressors, that we should carry a guilt in our heart, that at any moment, at any time, for any trivial issue, it can be love, it can be academic rivalry, any issue, any anonymous complaint, and our careers, our investments, our money, the hopes of our parents, the hopes of the villages that we come from are dashed forever. This is why I'm saying that this is unfair, and this is something I'd like to say to the Honorable Education Minister, Sir, UGC rollback. सरकार की जो यूजीसी के द्वारा नई इंट्रोड्यूस की गई प्रोविजन है जनरल कैटेगरी के वालों के खिलाफ जाता है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं आज दिल्ली महाविद्यालय के बाहर. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक एम्पावरमेंट करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है हमेशा से कि सोसाइटी में आज भी 70 साल हो गए, मतलब हमने रिजर्वेशन दे दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, लेकिन फिर भी आज भी जो ऑपरेस्ड क्लास है, ओबीसी, एससी, एसटी क्लास, उनके साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है. यहाँ तक कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, यहाँ से भी केसेस सामने आते हैं जहाँ पे बस इसीलिए क्योंकि कोई व्यक्ति रिजर्व्ड कैटेगरी से आया है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो इससे हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि ओबीसी वालों के साथ, एससी, एसटी के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा स्टेप है, उनको एम्पावर करने के लिए दिया गया है. लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा. इस रूल के द्वारा उन्होंने जनरल को बिल्कुल हटा दिया है कि आप तो क्लेम ही नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन. हमने अपने कॉलेज कैंपसेस में ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने नारे दिए हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, इस तरह के नारे दिए हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, प्रेवलेंट है, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल के साथ नहीं होता. तो मैं कहना चाहूँगा कि स्कीम बहुत ही अच्छी है, बहुत सही किया है एम्पावरमेंट करने के लिए, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये ड्रॉबैक है कि आप जनरल को भी थोड़े इंक्लूड करें. मैं ये नहीं कर रहा कि आप एकदम बराबर लेवल पे खड़ा कर दें, लेकिन कह रहा हूँ कि अगर जनरल के साथ कुछ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए प्रोविजंस हो, फॉल्स केसेस जो आते हैं उनके लिए भी प्रोविजंस हो, बस इतनी चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं. बस आंखें बंद कर लो यार, ओपन डाउन, माइक लगा दो. मना भाई, जनरल कैटेगरी के लोगों का ये कहना है प्रोटेस्ट के द्वारा कि जो हमारे पास वैसे ही बहुत कम पावर था, अभी हम और ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस बात से एकदम एग्री करता हूँ कि हम एकदम पावरलेस महसूस कर रहे हैं. हमारी जो शक्ति है वो उसको छीन ली गई है. समाज हमारा शोषण कर रहा है, सरकार हमारा शोषण कर रहा है. आप तराजू को इक्विलिब्रियम पे नहीं मेंटेन करेंगे, किसी भी एक समाज का पल्ला इस तरफ झुका देंगे तो वो विनाशकारी हो जाएगा. और वायु का विलोम होता है युवा, और हम स्वर्ण क्लास के जो युवा अगर तीव्र गति से चलेंगे तो किसी भी सत्ता के मत वालों को उठार फेंकने का हम हिम्मत रखते हैं. और सरकार ऐसे कानून को अगर वापस नहीं लेती है और जनरल क्लास का इसमें अगर समानता की बात नहीं करती है, यहाँ तक कि हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी को कास्ट, उसके बर्थ प्लेस या सेक्स से कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं देंगे. तो इस तरीके के काले कानून कैसे लागू होंगे? एक बच्चा पढ़ने के लिए आता है, साथ में ओबीसी का भी बच्चा पढ़ता है, एससी एसटी का भी बच्चा पढ़ता है. कल को अगर कोई बात आ जाए, उसने फॉल्स एलिगेशन दे दिया, फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. अगर उसकी कंप्लेंट झूठी साबित होती है तो उसके खिलाफ कोई दिक्कत नहीं आता. पूर्वा विहार एक सोच बनी हुई है 5000 साल पूर्व की कि जो जनरल क्लास के लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी का शोषण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. समाज अब बदल चुका है, हम लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं, समाज में एक साथ में रहते हैं हुए हैं. ये पूर्वा विहार से जो हम लोग को एक शोषणकर्ता माना गया है, हम लोग ऑपरेस्ड माने गए हैं, इस कानून में वो गलत है. इसका मैं विरोध करता हूं. जिस तरीके से साइमन कमीशन का ब्रिटिश सरकार के टाइम पे हमने विरोध किया था, उसी तरीके से हमने यूजीसी का रोल बैक का विरोध करेंगे. और समाज में निष्पक्षता और समानता इस तरीके के काले कानून से नहीं आ सकती है. और इस कानून में 2 अहम बिंदु हैं कि अगर फॉल्स कंप्लेंट पाया जाता है तो जो एप्लीकेंट है, जो पिटिशनर रहेगा, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा.
दूसरा जो काला कानून इस मुद्दे में है कि अगर 10 मेंबर की कमेटी बन रही है, उसमें डिसाइडेड नहीं है कमेटी का जो मेंबर होंगे वो जनरल कास्ट के होंगे कि नहीं, यहाँ तक कि उस कमेटी के जो स्टाफ होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो जनरल कास्ट के होंगे नहीं। हमारी बातें कौन सुनेगा? स्वर्ण समाज एकदम मरा हुआ और असहाय महसूस कर रहा है। सरल शब्दों में मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब ऑलरेडी कॉलेज कम्युनिटीज़ में SC, OBC और इंटर क्वालिटी कमिटीज़ होती हैं, ये रैगिंग्स कमेटी होती हैं, तो क्या हो सकता थी ये काला बिल लाने के लिए? महोदय, आपको पता होगा कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति भी एक आदिवासी समाज से आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी OBC समाज से आते हैं, तो क्या औचित्य था कि जनरल कास्ट को परेशान करना? आपको बता दूं कि आज स्वर्ण समाज, आज जनरल कैटेगरी दिल्ली विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय हो, अभी यहाँ है। समय आने पर संसद भवन के पटल पर भी जाकर युवा विकसित भारत की बात करता है तो युवा अपने न्याय और अधिकार के हक भी मांग सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि काला बिल हम सभी युवा सुबह से आए हुए हैं और माननीय मोदी जी, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी, आप सभी आइए और इस काले कानून को वापस लीजिए, नहीं तो युवा जाग चुका है। समृद्ध भारत की बात करते हैं तो युवा काले कानून को वापस करने की भी मांग कर सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट क्या तर्क दे रही है, क्या पॉइंट्स दे रही है कि ये जो UGC गाइडलाइन से क्यों लाई गई हैं। तो उनका कहना है कि जो क्राइम रेट है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है कैंपस में SC, ST, OBC कैटेगरीज का, तो वो बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। बट अगर हम नंबर्स पे देखें तो 100 से लेके 300 पे इंक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम डेफिनेटली इट्स 100% राइट्स, बट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर उसके अंदर से 300 केसेस आ रहे हैं, डेफिनेटली इट्स रॉन्ग अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और हम वेलकम भी कर रहे हैं अगर आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहेंगे, एक्शन लेना भी चाहिए डेफिनेटली। बट हम चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी को आप लेफ्ट आउट फील ना कराइए। अगर ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन खाली उन्हीं के साथ हो सकता है, जनरल कैटेगरीज जो स्टूडेंट है उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दैट्स वाई, और जो फेक कंप्लेंट्स है उसका भी एक जो पॉइंट है वो यहाँ पर आता है। तो दोनों को भी अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए वहाँ पर गवर्नमेंट को। दैट्स वाई वी आर प्रोटेस्टिंग।